Okay, so hi everyone. Welcome to the third session of New to Programming track of Android Study Jams by DSC IGDTUW. Today we will be starting with our Android development journey and even build our first app. Just to give you a sneak peek, after today's session, you will be able to make a dice roller app. This allows you to roll a dice when a button is clicked and get a random value each time. Simple apps like these introduce you to building UI layouts on Android, which is a key building block of Android development. Okay, so on that note, let's get started. We'll start with a few concepts. So, in the previous session, we did Kotlin, and I hope everyone has revised those concepts. Please give me a yes or a no in the chat, or you can also unmute yourself. Oh, great. A lot of people have revised. That's great. Yogya, it's okay if you couldn't join. I would recommend that after this session, you you watch the recording of the previous two sessions, and if you have any doubts, then you can contact me on the WhatsApp group. Shweta, can you please tell me what's your doubt? जी वाइल लूप तक तो रिवाइज कर लिया था। फॉर लूप में थोड़ा सा मेरे को डाउट है, मतलब वो समझ आ जाता है जैसे आपने लिख के बताया था, वो इंटरप्रेट करना हो गया, लेकिन खुद से एप्लीकेशन करने में अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा, ओके। um, या देखो वो ना प्रैक्टिस से ही होगा, बिकॉज मैंने तो आपको सिंटैक्स ही बता सकती हूँ। दे दो इसके बाद, मतलब सेशन के बाद प्रैक्टिस। अच्छा, ओके ओके। Any other doubts? Okay, so last time we did till functions and looked at some loops and the if-else statements. Today we'll be looking at the classes and objects. So as you write Kotlin code for your apps, you have to understand what classes and objects are. So a class is basically it's like a blueprint. Now जैसे अभी मैंने बताया that you'll be able to build the dice roller app. So let's take that for an example. फर्स्ट हमको कुछ भी अगर ऐप बनाना है, फर्स्ट ऐप नहीं, अब कुछ भी रियल लाइफ भी में भी सिचुएशंस देख लो, वी फर्स्ट हैव टू हैव सम ब्लूप्रिंट एंड यूजिंग दैट ब्लूप्रिंट वी क्रिएट मोर एंड मोर ऑब्जेक्ट्स, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा ठीक है, ये ऐप का एग्जांपल, हमको पहले एक डाइस का ब्लूप्रिंट चाहिए होगा, दैट व्हाट हाउ डज अ डाइस लुक, उसके क्या, how does it behave, what are its properties, what are the advantages and disadvantages, everything we have to know about the dice, and those information is written in a blueprint. And then using that blueprint we will be able to create the actual dices. So here in the ppt you can see we have a dice class, and then using that class we can create multiple dices. अब हमको ये अब इसी क्लास को एक क्लास को यूज करके वी कैन मेक एज मेनी डाइसेस एज यू वांट. अब अगर ये क्लास हम नहीं यूज करते, हम सिर्फ सीधा डाइस का ही प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर देते, तो आपको सेम प्रोग्राम यू हैव टू राइट अगेन एंड अगेन फॉर द नंबर ऑफ डाइसेस दैट यू वांट. सो वो बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा. टू शॉर्टन इट वी कैन जस्ट यूज अ डाइस क्लास, उसी क्लास के प्रॉपर्टीज वी कैन यूज इन many other programs that we create. More specifically, the dice class, it contains the details of what its property of a dice has, like the number of sides, how many times that it can be rolled, and kya numbers will be there on the sides, everything, like basically how a dice looks, and then how it behaves. We roll a dice, so that is a behavior of a dice. ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है ना. एक और एग्जांपल ले सकते हो. सपोज वी हैव टू क्रिएट अ हाउस. आपको कोई भी घर बनाना है या सपोज बिल्डिंग बनानी है, तो यू हैव टू हैव अ ब्लूप्रिंट. एंड यूजिंग दैट ब्लूप्रिंट आप सेम हाउसेस कितनी बार बना सकते हो, है ना? तो यहाँ पे जो एक्चुअल हाउस होगा जो आप क्रिएट करोगे, या एक्चुअल जो आपका डाइस होगा, दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, and the blueprint of the house or the dice is called your class. Okay, I hope you got it. मुझे yes या no बता दो, कुछ भी confusion है तो.
So can you please repeat the blueprint part? The Okay. dice blueprint and Okay. So a blueprint, उसमें आपके सारे properties की information आती है. ठीक है? How does a dice look? A dice has 6 sides. It has 12 edges. हर साइड पे there will be dots और numbers printed. और डाइस का कलर क्या होगा, डाइस पे जो डॉट्स है उसका कलर क्या होगा, basically the features of that dice, every all those things come in the dice class. ठीक है? एंड जो आपका बिहेवियर, चलो डाइस नहीं कुछ और ले लेते हैं, बुक ले लो. ठीक है? आपको लाइब्रेरी का प्रोग्राम बनाना है. आप लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, शेल्व्स होता है ना? तो जितने भी शेल्व्स होंगे सारे शेल्फ का बेसिक प्रॉपर्टी तो सेम ही होगा ना. उसमें शेल्व्स होंगे, उसमें आप बुक रखते होंगे एंड उसका कुछ हाइट या लेंथ फिक्स्ड होगा, है ना? तो शेल्फ आपका एक क्लास हो गया कि आपका ये शेल्फ क्लास है, इसमें ये आपकी हाइट होगी, ये आपका विड्थ होगा, उसमें बुक्स आती है और इतने नंबर ऑफ शेल्व्स होंगे उस शेल्फ पे. ये आपका एक क्लास हो गया. दूसरा क्लास आपका बुक्स का हो गया कि आपका बुक्स में इतने पेजेस होते हैं, बुक्स रेक्टेंगल शेप का होता है या क्यूबॉइड होता है, ऐसे साइड्स होती है, उसमें ये कलर होता है और इतने पेजेस होते हैं. तो ये प्रॉपर्टीज होंगी बुक्स की, दैट विल कम इन द बुक क्लास एंड यूजिंग दैट क्लास वी कैन क्रिएट मेनी बुक्स. अब वो बुक का कंटेंट क्या होगा वो तो बुक में आप बुक का जब प्रोग्राम लिखोगे तब उसमें आप डाल सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर तो आपका सेम होगा ना. समझे? yes. जब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसमें कुछ हम इनपुट डाल देते हैं, उसके बाद जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम डिफरेंट इनपुट्स देते रहते हैं. तो जैसे वो ब्लूप्रिंट टाइप हो गया, और जितनी बार हम कॉल करेंगे तो डिफरेंट हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, लाइक डिफरेंट वैल्यूज देके. हाँ, तो जो आप वैल्यूज दे रहे हो those will be your objects. हाँ, तो सिमिलर टू दिस, लाइक वो जो क्लास हो गई हमारी, वो एक तरीके से हमारा जो फंक्शन हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया, उसके बाद हम अलग देके बुला सकते हैं. हाँ, करेक्ट, समझा. Okay, anybody else? Okay, so I'll move on. अब ये तो था आपका Kotlin का पार्ट एंड द सिंटैक्स एंड एवरीथिंग एज वी कोड in the further sessions. I'll tell you how the syntax and everything looks of a class and an object. But बस अभी आपको basic understanding होना चाहिए what a class and object is actually is and how do we use it in our day-to-day lives. Okay. Now let's start with the Android development concepts. First and foremost, whenever you create an app, the first thing that you need to know about is a view. Now, what is a view? It is your base class for widgets. अब जो आपके buttons होते हैं या आपके text लिखा होता है आपके ऐप के screens में या कोई image होती है, these things are called widgets. widgets, widgets, okay? And ये जो widgets का जो base class होता है, those classes are called views. ठीक है? We have three types of, we also have more types of views, but the most commonly used views are these three: text view, image view, and button. These three are your base classes. अब अगर आपको कुछ टेक्स्ट डालना है, जैसे आपको टाइटल लिखना है आपके ऐप में, ठीक है, आपके स्क्रीन में आपका खुला, आपका ऐप फर्स्ट पेज खुला, उसमें आपका टाइटल लिखा है, कुछ भी कंटेंट जितने भी टेक्स्ट चीजें हैं वो आपका आ जाएगा टेक्स्ट व्यू में. सो जैसे अभी मैंने बताया, दोज टेक्स्ट, आपका हर स्क्रीन का टेक्स्ट तो अलग अलग होगा, यूनिक होगा. सो दोज विल बी योर ऑब्जेक्ट्स. एंड जो आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर होगा ऑफ हाउ अ टेक्स्ट इज डिस्प्लेड ऑन योर ऐप, दोज विल बी written in the base class which is the text view. ठीक है? Similarly for your image view is your base class and उसके अंदर कोई image रहती है, that image is your object. Image view में आपका आ जाएगा कि आपका image का क्या length होगा, क्या width होगा, and screen पे कहाँ वो positioned होगा, उसका अगर कुछ border होगा तो border कैसा दिखेगा, कौन से color का होगा, those things will be written in the image view. और जो भी image, आपका जो image display होगा, that will be your object. Same for your button. Button is your view or your base class, and how will that button look like? Will it be a rectangular
button, what will be its length, what will be its width, where will it be positioned on the app screen. Those things will be written in the button view. ठीक है. सिमिलरली एक और होता है, इट इज कॉल्ड एडिट टेक्स्ट. जैसे आपने कभी देखा, जैसे हम लॉगिन का स्क्रीन होता है, उसमें आप इनपुट करते हो ना आपकी ईमेल आईडी या पासवर्ड, वो जो इनपुट का जो एरिया होता है, दैट इज कोडेड यूजिंग एडिट टेक्स्ट, EDITTEXT. ये एक सिंगल वर्ड है एडिट टेक्स्ट. वो उसका व्यू होता है फॉर योर इनपुट्स. ठीक है. ये समझ आया सबको व्यूज क्या होते हैं? Yes. ओके. सो नेक्स्ट, अब ये तो हो गया आपके सिंगल चीजें है ना. सिंगल आपका एक बटन हो गया, आपका टेक्स्ट हो गया. सॉरी टू इंटरप्ट. हमने जैसे डिफाइन किया तो उसमें हम जैसे हमें एक पेज पे जो हमें टेक्स्ट चाहिए उसका हमें कोई और फॉन्ट रखना है और दूसरे पेज पे कोई और, तो हम सेम उस क्लास को यूज करके बस वैल्यूज चेंज करके अपने फॉन्ट ऐसे यूज कर सकते हैं. हाँ, वही तो आप करोगे. आप वही सेम क्लास यूज करोगे और बस उसकी वैल्यूज चेंज कर दोगे. ओके. ठीक है. अभी अगर थोड़ा बहुत भी समझ आया तो इट्स ओके. अभी आगे ना मैं आपको लेआउट कोड करना सिखाऊंगी, तब ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपके बेटर हो जाएगा. ओके. ठीक है. सो ये तो आपके हो गए. दीज विजेट्स विल बी योर सिंगल कंपोनेंट्स ऑफ योर स्क्रीन, लाइक अ बटन और इमेज और टेक्स्ट. सिंगल चीजें हो गए. अब हाउ आर दे प्लेस्ड ऑन द स्क्रीन? कोई एक प्रॉपर, देयर हैज टू बी अ लेआउट, राइट? बिकॉज हम सबके स्क्रीन्स के साइजेस डिफरेंट होते हैं. किसी के पास टैबलेट होगा, किसी के पास छोटा फोन होगा, किसी के पास बड़ा स्क्रीन का फोन होगा. तो हर उसमें वो स्क्रीन में फिट हो एंड करेक्ट प्लेसेस पे हो, तो देयर हैज टू बी सम रूल्स, some kind of way where how it will be presented on the screen. So that structure or that that structure for your user interface, that is called a layout. Okay. And all these elements in the layout, they are built using the views that I explained earlier. Okay. अब ये layouts are basically called view groups, and आप layout भी बोल सकते हो, view groups भी बोल सकते हो, it's the same thing. You have different kinds of layouts: linear layout, frame layout, relative layout, constraint layout. जो सबसे दो basic types of layouts होते हैं, they are linear layout and relative layout. So what is a linear layout? In this layout, all the views are aligned in a single direction. Either they will be horizontal or vertical. ठीक है. Now, चलो vertical में तो हमको समझ आ गया कि एक के नीचे एक होंगे, है ना. horizontal में एक साइड बाय साइड होंगे. बट जैसे वर्टिकल में ऐसा नहीं होगा. सपोज जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो, लेट मी गेट द पॉइंटर. या अब जैसे देखो, दिस बॉक्स इज अ स्मॉलर बॉक्स देन दिस बॉक्स, राइट? अगर ये बॉक्स यहाँ पे होता, वर्टिकल तो आपको समझ आ गया ना, हमेशा एक के नीचे एक होंगे. कितने भी आप व्यूज डाल दो, कितने व्यूज मतलब कुछ भी एडिट टेक्स्ट या इमेज डाल दो या टेक्स्ट डाल दो, जो भी होगा या उस एक के नीचे एक ही होंगे. आप यहाँ पे एक नहीं डाल सकते. वो फिर आपका हॉरिजॉन्टल वाला ओरिएंटेशन हो जाएगा ना. इसमें ये तो चलो ठीक है, ये आपका ऐप स्क्रीन है ना. ये आपका जो भी आपका व्यू होगा, ये तो सारी स्पेस ले रहा है. बट व्हाट इफ दिस वाज जस्ट हाफ ऑफ दिस? अगर ये बॉक्स का विड्थ इतना ही होता सिर्फ, तब भी द नेक्स्ट व्यू would not have been here. It will be just below this one. कुछ भी विथ होगा, अगर इतना सा भी इसको एक सर्कल भी होता, तभी वो ऐसे एक के नीचे एक ही आएंगे. ठीक है. सो द विथ डजंट मैटर. लीनियर लेआउट समझ आया? आई एम सॉरी इफ आई एम गोइंग टू फास्ट, जस्ट लेट मी नो. आगे. ओके. नाउ रिलेटिव लेआउट. अब जैसे लीनियर लेआउट, इसमें सब फिक्स्ड है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल. अब सपोज अगर किसी का जैसे ये आपका स्टैंडर्ड साइज, सपोज इससे बड़ा किसी का स्क्रीन होगा. चलो ये वाला एग्जांपल ले लो, हॉरिजॉन्टल एग्जांपल ले लो. अगर जैसे मेरा अभी लैपटॉप का स्क्रीन ही ये छोटा सा होगा ना, तो ये जो चीजें हैं वो एक लैपटॉप को बस इतना सा पोर्शन ले लेगा लैपटॉप के स्क्रीन का, बाकी सारा ब्लैंक रह जाएगा, राइट? बिकॉज उसका विड्थ तो फिक्स्ड है,
तो ये लीनियर लेआउट उनके लिए, उन एप्स के लिए ठीक है जिसमें वी नो कि यूजर का जो स्क्रीन साइज होगा दैट विल बी फिक्स्ड, बट हमेशा ऐसे तो पॉसिबल नहीं होगा, वो तो एकदम आइडियल सिचुएशन हो गया ना। तो रियल लाइफ में वी यूजुअली यूज रिलेटिव लेआउट और कंस्ट्रेंट लेआउट. Relative layout is easier to understand, so I'm telling you this about this right now. अब relative layout में क्या होता है, जो भी आपके widgets होंगे ना, they will be in those positions will be relative to each other. तो जैसे suppose कोई यहाँ पे जैसे आप जैसे ये 3 बटन्स है, ओके, तो हम उसमें हमने पहले वाला ये बटन यहाँ पे डाल दिया स्क्रीन में. अब जब सेकंड बटन का हम कोड लिखेंगे तो वी विल मेंशन दैट दिस विल ऑलवेज बी ऑन द राइट ऑफ दिस बटन. तो अगर किसी का स्क्रीन छोटू भी हुआ या बड़ा भी हुआ तो हमेशा ये बटन इसके राइट पे ही रहेगा, चाहे कितने भी कोई भी स्क्रीन साइज हो जाए. सिमिलरली ये वाला बटन में हम मेंशन कर देंगे दैट दिस विल ऑलवेज बी ऑन द राइट ऑफ द सेकंड बटन, या राइट पे या बिलो और अबव और ऑन द लेफ्ट, या इतना मार्जिन की डिस्टेंस पे ये ऐसे रहेगा. तो वो फिक्स हो जाएगा, तो वो रिलेटिव हो जाएगा. तो अब मैटर नहीं करता कुछ भी आपका स्क्रीन साइज हो जाए, तो उसके हिसाब से अपने आप को वो लोग एडजस्ट कर लेंगे. तो दैट इज अ मच मोर प्रेफरेबल वे ऑफ मेकिंग योर ऐप लेआउट्स और ऐप यूआई लेआउट्स. ठीक है, रिलेटिव लेआउट इन सबके कोड्स आई विल टेल यू because you have to have some understanding about the XML language, but I hope आपको समझ आ गया what basically a layout is and the meaning of linear and relative layout and views also. आ गया ना समझ? Should I move on? Yes, okay. That was about layouts. अब जो now when you start creating your apps, ठीक है, फर्स्ट थिंग इज आपने लेआउट बना लिया, ठीक है, कि आपका ऐप कैसे दिखेगा. अब आपको ऐप को रन करना है ऑन योर फोन्स और ऑन एन एंड्रॉइड एम्यूलेटर. तो जब रन होगा उसका एक विंडो होगा, लाइक व्हेन यू ओपन द ऐप आपका एक स्क्रीन होती है ना, तो दैट विंडो, उस विंडो में ही आपका लेआउट विल बी डिस्प्लेड, राइट. एक बॉर्डर होगा उसी में आपका लेआउट विल बी डिस्प्लेड. So that window or that border is called an activity. Okay, an activity provides the window in which your app draws its UI. Instagram we all use, right? So I'll take the example of Instagram. When you open the app, first screen you see the screen, है ना, ये आपका home page होता है. So this is called your main activity. जो भी आप एप्स बनाओगे, every app has to have a main activity because that is your first page that your user sees. Okay, or the user when the user opens your app, that is the first screen that the user sees. That is called the main activity. जैसे Kotlin में हमारा main function था ना, वहीं से आपका start होता है सारा compiling program का. App एंड्रॉइड डेवलपमेंट में दैट सेम थिंग इज कॉल्ड द मेन एक्टिविटी. वहीं से आपका सब कुछ एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है. अब जैसे आपने ये खोला, इंस्टाग्राम खोला ना, यू क्लिक्ड ऑन समवन्स प्रोफाइल, सो दिस पेज इज ओपन्ड. अब इस पेज का लेआउट और आपका होम पेज का लेआउट डिफरेंट है ना. यहाँ पे सारे स्टोरीज दिख रहे हैं, यू कैन सी द पोस्ट्स और अ सिंगल पोस्ट, एंड हियर आपको यहाँ पे प्रोफाइल डीपी है, प्रोफाइल जिसकी है उसका नेम्स है, लिंक्स है, फॉलो, मैसेज, बटन्स है, स्टोरीज के ऑप्शंस है, यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है. सो दिख रहा है कि दोनों के लेआउट्स डिफरेंट है ना. तो अब मेन एक्टिविटी का जो भी लेआउट है हम वो तो इसमें यूज नहीं कर पाएंगे. सो वी हैव टू क्रिएट अनदर लेआउट फॉर दिस व्हेनेवर द यूजर ओपन समवन्स प्रोफाइल. सो जब भी हम नया लेआउट बनाते हैं तो वी यूज अनदर एक्टिविटी, ठीक है. तो ये जब प्रोफाइल की स्क्रीन जब खुलेगी, दिस विल बी अ डिफरेंट एक्टिविटी. सिमिलरली इफ यू ओपन योर मैसेजेस, देन दैट मैसेज का लेआउट becomes different than your profile or your main activity. So you have to create another activity for the messages screen, and that will be your
मैं तो आपको रैंडम नेम्स दिए हैं, चैट एक्टिविटी, प्रोफाइल एक्टिविटी, तो आप नेम्स कैसे भी दे सकते हो, बट मेन एक्टिविटी तो आपका फिक्स्ड होता है, वो नेम इज फिक्स्ड, बाकी ये आप कुछ भी नेम दे सकते हो। ओके, सो या चैट का आपका अलग एक्टिविटी होगा, फॉर योर प्रोफाइल अलग एक्टिविटी होगी, स्टोरीज के लिए भी अलग एक्टिविटी होगी बिकॉज द लेआउट इज डिफरेंट, और व्हाट एल्स इज देयर ऑन इंस्टाग्राम, रील्स के लिए भी आपकी अलग एक्टिविटी होगी। ठीक है, जब आप फॉलो करते हो, जो आपके फॉलो रिक्वेस्ट आते हैं, उसके लिए भी आपकी अलग एक्टिविटी होगी बिकॉज द लेआउट इज डिफरेंट। So you see, in a single app, you have lots of different activities, but a single main activity. Main activity is the first and foremost thing that you type or you code in your app. Then you move on to the layout of your main activity. Then you create more activities. Okay? इतना समझ आया? दी हाँ, मतलब अगर हर एक एक्टिविटी का जो लेआउट होगा वो अलग अलग होगा, हाँ, सेम नहीं हो सकता। नहीं, दैट्स द पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग मोर एक्टिविटीज, बिकॉज उनका लेआउट सेम नहीं होगा। जैसे अभी अगर आप, एक प्रोफाइल तो नहीं होती ना इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं, और सब प्रोफाइल का लेआउट तो सेम ही होता है हाँ, ना, तो अलग अलग प्रोफाइल के लिए हम वो सेम एक्टिविटी यूज कर सकते हैं, और दीदी बट अगर आपका लेआउट चेंज हो जाएगा तो आपकी एक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। कैमरा जो इंस्टाग्राम में जो कैमरा आता है वो भी एक एक्टिविटी हुई। हाँ, वो भी एक एक्टिविटी होगी, यस। ओके, एनी मोर डाउट्स? नो। आंटी जब हम पोस्ट करते हैं पिक्चर्स तो उसमें जो लेआउट आता है वो भी एक एक्टिविटी है। हाँ, वो भी एक एक्टिविटी, यस। बेसिक वही है, जैसे आपका लेआउट चेंज हो गया, आपकी एक्टिविटी नहीं बन जाएगी। Okay, so moving on. एक activity, it has different states. Okay, when you open your app, तब आपका अलग उस मेन एक्टिविटी के अलग स्टेट होता है। जैसे जैसे आप वो ऐप को यूज करते हो, इट गोज थ्रू अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, और ये स्टेट का साइकिल is called the activity life cycle. Now, understanding this cycle is very important because based on this cycle only, we will be creating functions when we will be creating our apps, and those functions are really important. So, अगर कुछ भी डाउट हो, छोटा से छोटा, तो प्लीज मुझे पूछ लेना, because understanding this is very important. Okay, so now when we open any app, मैं आपको इंस्टाग्राम का ही मैं एग्जांपल ले देती हूँ। आप जैसे ही खोलते हो ऐप को, तो सबसे पहले वो जो मेन एक्टिविटी होती है उसका विंडो क्रिएट होता है आपके फोन के स्क्रीन में। ओके, एंड देन वो जो भी आपका एक्टिविटी का लेआउट है, दैट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द बैक एंड, वो ड्रॉ होता है एंड देन इट इज डिस्प्लेड इन दैट विंडो। बट जो वो डिस्प्ले होता है, इट इज नॉट इंटरैक्टेबल, मतलब जब वो डिस्प्ले होगा, अगर आप कुछ भी ट्राई करोगे उसको करने के लिए, कुछ भी क्लिक करने के लिए, वो नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट अप फॉर इंटरैक्शन। दैट स्टेट इज कॉल्ड योर ऑन क्रिएट एंड ऑन स्टार्ट। ऑन क्रिएट, जब आपका वो आपने जैसे दबाया इंस्टाग्राम का ऐप को खोला, वो विंडो क्रिएट हुई, दैट विल बी योर ऑन क्रिएट। फिर वो विंडो में आपका लेआउट डिस्प्ले हो गया, बट वो इंटरैक्ट नहीं कर सकते आप उससे, ठीक है, कुछ क्लिक वगैरह नहीं कर, बस आपका डिस्प्ले हो रहा है वो एज एन इमेज, दैट विल बी योर ऑन स्टार्ट। फिर जैसे ही आपका सारे कंपोनेंट्स इंटरैक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर ऑन रिज्यूम, दैट स्टेट इज कॉल्ड योर ऑन रिज्यूम। नाउ दीज 3 मेथड्स, अभी बोलने में तो ऐसा लग रहा है कि कितना स्लोली होता होगा, बट दे हैपन इन अ मैटर ऑफ माइक्रोसेकंड से भी छोटा। हमको पता ही नहीं चलता कब वो क्रिएट हुआ, कब लेआउट डिस्प्ले हुआ, और वो क्लिकेबल भी बन गया। तो रियल लाइफ में बहुत फास्ट होते हैं, बट ये 3 अलग अलग स्टेट्स होते हैं आपका। मैं रिपीट कर देती हूँ। व्हेन यू ओपन द ऐप, a window is created where your layout will be drawn. That creation of the window is called on create. When the layout is displayed and not ready for user interaction, that is called your on start state of the main activity. Okay,
every activity will have different states. So अभी मैं सिर्फ मेन एक्टिविटी का बता रही हूँ. ओके, आपका लेआउट डिस्प्ले हो गया, but it is not up ready for user interaction. That is called on start. Now सारे components आपके रेडी हो गए, जितने भी बटन, स्टोरी, सब कुछ रेडी हो गया, आप चला सकते हो इंस्टाग्राम. देन दैट स्टेट इज कॉल्ड ऑन रिज्यूम. ठीक है. अब सपोज अब आपने खुला, आपने बहुत टाइम तक आप स्क्रॉल कर रहे हो, एंड देन यू गेट अ कॉल और some other notification, maybe WhatsApp message or SMS, any kind of another notification which is more important than the Instagram app. जैसे calls आपके important होते हैं, messages are more important than the Instagram app or any other app. मतलब बेसिकली फोन में जब भी ऐसे नोटिफिकेशंस आते हैं, दे आर गिवन हायर प्रायोरिटी, राइट? आपके डिस्प्ले हो जाते हैं दोज नोटिफिकेशंस. अब जैसे वो नोटिफिकेशन आ गया तो आपका जो इंस्टाग्राम ऐप होगा दैट विल गो टू द ऑन पॉज स्टेट. वो एक्टिविटी आपकी पॉज हो जाएगी वहीं पे जब तक आप वापस उस स्क्रीन पे नहीं आते हो. सपोज आपने कॉल उठाया तो आपके बैकग्राउंड पे तो इंस्टाग्राम चल रहा है ना, तो जो बैकग्राउंड पे चल रहा है इट इज इन द ऑन पॉज स्टेट. ओके, ऑन पॉज से फिर अगर सपोज आपने जल्दी फोन रख दिया या आपने मैसेज को अटेंड कर दिया एंड देन यू कम बैक टू द इंस्टाग्राम ऐप, then it goes back to the on resume state. But suppose you are there on the call for a long time, or you have navigated to some other app, then that Instagram app, वो जो activity होगी, it will be no longer visible and it will go to the on stop stage. फिर जब on stop पे हो जाएगा, it is no longer ready for user interaction. अगर आप वापस भी आओगे Instagram app पे तो तब वो restart होगा, अपने ऑन रीस्टार्ट होगा, फिर वो स्टार्ट होगा, मतलब वो रीस्टार्ट हो जाएगा. यहाँ से डायरेक्ट ऑन पॉज या रिज्यूम पे नहीं जाएगा वो. हाँ दी, जैसे कि हम ऐप यूज़ कर रहे हैं और जैसे किसी का कॉल आ गया, हाँ, तो हमने उठाया, तो मतलब इनके पीछे मतलब टाइम लगाया होता है कि मतलब इतने टाइम तक अगर आप उस ऐप पे नहीं आ रहे हो तब वो मतलब ऐप बंद हो जाएगी. आप जैसे कुछ भी उस ऐप के बाहर कुछ भी क्लिक कर देते हो ना, वो तभी वो ऑन पॉज चला जाता है. अच्छा. बट ऑन पॉज से ऑन स्टॉप इसके लिए कुछ टाइम लिमिट होती है, वो ऐप टू ऐप डिपेंड करता है. ओके. समझ आया ना? हाँ. ठीक है. जैसे आप कुछ भी कहीं और क्लिक कर दोगे, आप बैक बटन भी दबा दोगे, तब वैसे ही वो ऑन पॉज पे चला जाएगा. ठीक है. या ऑन स्टॉप पे तब जाते हैं जब बहुत टाइम के लिए आप वापस नहीं आते हो, मतलब a couple of hours, even 1 hour तक भी अगर आप वापस नहीं आओगे तब वो ऑन स्टॉप पे चला जाएगा. मैं इंस्टाग्राम की बात कर रही हूँ, बाकी ऐप्स का मुझे से ध्यान नहीं है, बट इंस्टाग्राम 1 hour के बाद वो ऑन स्टॉप पे चला जाता है. फिर ऑन स्टॉप से अब ऑन स्टॉप चला गया, फिर कुछ टाइम के लिए इट स्टेज इन द ऑन स्टॉप stage. Now if you return to that app, then it will go to the on restart and then it will start again. But वो ऑन रिज्यूम पे नहीं जाएगा, वो सीधा स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा. अब अगर आप वापस नहीं आए, बहुत घंटे हो गए वापस नहीं आए, तो देन इट विल गो टू द ऑन डिस्ट्रॉय एंड दैट एक्टिविटी विल बी डिस्ट्रॉयड. फिर आप जब अगर फिर से खोलोगे बहुत टाइम के बाद, तो इंस्टाग्राम वापस से पूरा खुलेगा, पूरा आपका होम पेज सीधा खुल जाएगा, क्योंकि वो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. ठीक है. एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपकी एक्टिविटीज इन द ऑन स्टॉप स्टेज एंड आपके फोन में अदर एप्स आर रनिंग विच नीड मोर मेमोरी. तो वो मेमोरी फ्री करने के लिए जितने भी एप्स आपके ऑन स्टॉप पे है ना, उनको फोन दोज प्रोसेसर आर किल्ड और वो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है. फिर अगर आप वापस आओगे उस ऐप पे, तो वापस से वो ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड देन ऑन रिज्यूम होगा. ये कभी कभी होता है, बट पहले जब हमारे फोन्स में इतनी मेमोरीज नहीं होती, आजकल तो मतलब बहुत ज्यादा जीबी की मेमोरीज होने लगे फोन में, पर जब पहले टाइम में जब बहुत कम कम मेमोरी होती थी, तब ये होता था कि ऑन स्टॉप पे जाके वो डिस्ट्रॉय कर देता था उन एक्टिविटीज को, बिकॉज फोन को दूसरे एप्स चलाने के लिए ज्यादा मेमोरी चाहिए होती थी. सो दैट वाज इट फॉर द एक्टिविटी लाइफ साइकिल. इसमें कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछ लो.
तो समझ आ गया ना कि लाइफ जी साइकिल कैसे। हाँ सारे ऐप्स में ऐसा होता है कि मतलब अगर अपन थोड़ी देर के लिए ऐप छोड़ के किसी दूसरी ऐप पे चले जाते हैं तो हमने जो हाँ। कुछ भी किया होता है उस ऐप पे वो हमें स्टार्टिंग से करना पड़े, अपन कंटिन्यू नहीं कर सकते, मतलब जो नहीं, पेज खुला हुआ था। अगर वो ऑन स्टॉप पे चला गया तो वो स्टार्टिंग से आएगा। अगर ऑन पॉज पे ही रहता है तो आपका उसी से आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ऐसा कोई मतलब फंक्शन या फिर ऐसा कुछ प्रोग्राम अपन डाल नहीं सकते जिससे वो कंटिन्यू रहे, मतलब जो तो पेज वही हमने ना, खोल आप रखा है। ऑन पॉज का आप टाइम बढ़ा सकते हो। अगर अपन ऑन पोज का जो टाइम है वो बढ़ा देंगे हम्म। और अच्छा मतलब जो ऑन पोज का टाइम है उस पर डिपेंड करता है। हाँ, अगर ऑन देखो, मैंने जैसे बताया, आप जैसे ही कुछ और क्लिक कर देते हो तो एकदम से ऑन पॉज पे से चली जाती है आपकी एक्टिविटी। वो तो आप उसका डिले नहीं कर सकते। बट ऑन पॉज टू ऑन स्टॉप, ये जो ट्रांजिशन है ना, इसको आप डिले कर सकते हो, इसका टाइम लिमिट आप सेट कर सकते हो। तो बेसिकली हमको इसी टाइम लिमिट को हमको बढ़ाना है ताकि वो उसी पे रहे और आप कंटिन्यू कर पाओ। ऑन स्टॉप पे जैसी तरह जाएगा तो आपकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, वो वापस से स्टार्ट होगी। ओके जी। एनी अदर डाउट्स? सबको फिर पक्का से समझ आ गया ना? बिकॉज ये नहीं समझ आएगा तो फिर आप आगे कोड नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऑन स्टार्ट और एक बार ऑन रिज्यूम वापस बता दो। ओके, सो आप जैसे ऐप खोलते हो, आपका एक विंडो क्रिएट होता है, मतलब एक बॉक्स क्रिएट होता है आपकी स्क्रीन पे। दी जो वो बॉक्स क्रिएट होता है हाँ उसके अंदर लाइक जैसे और भी ऑप्शंस आते हैं, लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद गूगल, ये बाकी सारे, तो ऐसे अपन इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये भी एक एक्टिविटी हुई। क्या? मतलब जो हमारा मेन पेज होता है ना जिसमें लॉगिन और एक पासवर्ड का हाँ ऑप्शन हाँ आता हाँ है, हाँ हाँ तो हाँ। उसके नीचे ऐसा भी होता है कि लॉगिन विद गूगल, मतलब लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन हाँ, तो विद जब उस गूगल। पर आप क्लिक करोगे तो अलग पेज खुल जाता है ना, हाँ तो वो पेज आपकी अलग एक्टिविटी होगी। बट फिर वो क्लिक करने का एक्शन, दैट विल नॉट बी एन एक्टिविटी। ओके। एक्टिविटी बेसिकली आपके स्क्रीन्स होते हैं, जो आपके स्क्रीन दिखते हैं ना, एप्स के जो भी स्क्रीन्स होते हैं अलग अलग, जैसे लॉगिन का पेज, रजिस्टर का पेज या प्रोफाइल का पेज, ये अलग अलग स्क्रीन्स होती है ना, वो स्क्रीन्स को ही एक्टिविटी बोलते हैं। ओके जैसे दी। आपने व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप में आपके वो चैट्स दिख रहे हैं, वो आपकी एक स्क्रीन हो गई, तो वो आपकी एक एक्टिविटी। फिर आपने कोई चैट खोली किसी के साथ, तो वो चैट का जो स्क्रीन होगा वो आपकी अलग एक्टिविटी होगी। किसी के आपने डीपी देखने की कोशिश करी, तो वो डीपी वाला पेज एक अलग स्क्रीन हो गया ना, मतलब दिखने में अलग दिखता है ना। दी एक एक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटी के जो बीच में मतलब टाइम सेट किया जाता है क्या, या नहीं फिर नहीं, कोई वो तो टाइम नहीं? यूजर पे नहीं, ऐसे कुछ टाइम नहीं होता। वो तो यूजर पे डिपेंड करता है ना, वो क्या क्लिक करेगा। अच्छा, मतलब एक एक्टिविटी और दूसरे पेज में मतलब कोई टाइम नहीं होता, नहीं नेट पे डिपेंड नहीं। करता है वो कित। ओके। हाँ, वो तो बस आप जैसे कोड लिखोगे तो आप उसको कनेक्ट कर देते हो, उस पर लिख देते हो कि जैसे अगर ये दिस बटन इज क्लिक्ड तो ये एक्टिविटी को बुला लो, मतलब ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। या आपने बैक बटन पे दबाया तो आपका ये एक्टिविटी दिखेगी ऐसे, मतलब वो आप ही सेट करते हो, वैसे कुछ टाइम नहीं होता। ओके दी। और कुछ डाउट्स? पक्का से पूरा अच्छे से समझ आ गया ना? मैं बार बार बोल रही हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दी ऑन स्टार्ट और एक बार ऑन रिज्यूम। हाँ ठीक है। सो आपने ऐप खोला, आपकी एक विंडो क्रिएट हुई, आपका एक बेसिकली एक बॉक्स क्रिएट हुआ, उस बॉक्स के अंदर आपका ऐप का फर्स्ट पेज खुलेगा। ठीक है, तो दैट बॉक्स जब क्रिएट होगा इट विल बी ऑन क्रिएट। फिर वो बॉक्स में आपका, जैसे आपने अभी बोला लॉग इन विद फेसबुक और लॉग इन विद गूगल लिखा आता है, तो वो जो दिखता है, जो आपका स्क्रीन दिख रही है,
जो 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 भी उसमें दिख रहा है, कुछ भी इमेज हो, टेक्स्ट हो, वो आपका जैसे डिस्प्ले हो जाएगा, बट उसमें आप कुछ क्लिक वगैरह नहीं कर सकते, आप कुछ भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते स्क्रीन के साथ, तो बस ऐसे ही आपको दिख रहा है कि अच्छा ऐसा दिखेगा। अच्छा, नाइस एग्जाम्पल वुड बी जब आपका हमारा फोन हैंग हो जाता है या लैपटॉप हैंग हो जाता है, तो एक स्क्रीन पे अटक जाता है ना, आप कुछ क्लिक वगैरह नहीं कर सकते, बट आपको स्क्रीन दिख रही होती है, बट आप कुछ कर नहीं पाते उसके साथ, है ना। तो वो स्टेट एक ऐप में हमेशा आपका सबसे पहले वो स्टेट क्रिएट हुआ होता है, वो स्टेट को बोलते हैं ऑन स्टार्ट। फिर जब आप उसमें क्लिक वगैरह कर पाते हो, दैट स्टेट इज कॉल्ड ऑन रिज्यूम। दी पर जो अपन जैसे लॉगिन विद फेसबुक करते हैं तो जो नया पेज खुल जाता है उसके अंदर जो पासवर्ड और ये तो जो आपका ईमेल मतलब होता आपका ऐप चल रहा है ना, ये तो चलने वाला स्टेट हो गया कि है, आप लेकिन वो डालना क्लिक तो कर हमें पा रहे हो। पड़ता है ना फिर। अगर मतलब किसी के पास कोई फेसबुक यूज़ नहीं कर रहा हो और उसे करना हो तो उसे डालना तो पड़ेगा ना फिर। मतलब क्या डालना पड़ेगा? वहाँ पे उस अपना ईमेल और नीचे पासवर्ड। हाँ, तो वही आप डाल रहे हो, मतलब आप इंटरेक्ट कर रहे हो ना स्क्रीन के साथ, अच्छा। मतलब डाल रहे हो या क्लिक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब वो स्क्रीन के साथ इंटरेक्शन ही तो हो रहा है ना, मतलब आप यूज कर रहे हो उस ऐप को, चाहे अपना ईमेल ही डाल रहे हो, बट यूज तो हो रहा है ना वो ऐप। तो वो स्टेट है ऑन रिज्यूम, कि आप यूज कर पा रहे हो उस ऐप को। समझ आया ईशा? हाँ हाँ दी, थैंक यू। पक्का ना? ऐसे ही हाँ नहीं बोले, मैं बार बार समझा दूंगी, कोई बात नहीं, बस अच्छे से समझ आ जाए। ऑन रिज्यूम की स्टेट मतलब उसी के अंदर अगर अपन कोई दूसरी चीज़ खोल लेते हैं, ये होती है ऑन रिज्यूम की स्टेट। हाँ, वो स्टेट है, वो एक्टिविटी की स्टेट, आप कुछ भी कर लो, कुछ और भी खोल लो। अम, अच्छा, मैं ना आपको, मैंने एक ऐप जो कि बनाया उसी उस ऐप बुक में से। अगर अपन कुछ और खोल लें तो वो होती है ऑन रिज्यूम की स्टेट। हाँ मतलब उसी ऐप के अंदर अगर अपन कोई दूसरी चीज़ खोल लें तो वो ऑन रिज्यूम की स्टेट हो जाती है। हाँ, खोल लो या कुछ भी करो, अगर आप बस ऐसे स्क्रॉल भी करो ना नीचे, वो भी ऑन रिज्यूम स्टेट होता है। फिर ऑन स्टार्ट क्या थी? ऑन स्टार्ट आप कुछ कर नहीं सकते, जैसे आप आपको स्क्रीन हैंग हो जाती है, तो कुछ कर नहीं पाते ना, वो ऐसे ही रह जाता है, स्टिल रहता है, वो स्टिल वाला जो स्टेट होता है दैट इज ऑन स्टार्ट। तो ऑन स्टार्ट सबकी में थोड़ी ना आता है ऑन सब स्टार्ट में स्टेट। आता है, हमको दिखता नहीं है, क्योंकि बहुत कम टाइम में ये ऑन क्रिएट ऑन स्टार्ट फिर एकदम से ऑन रिज्यूम आ जाता है। अच्छा, मतलब इसकी टाइम लिमिट बहुत कम होती है। हाँ, बहुत ही कम, बहुत ही कम। तो वो जो टाइम लिमिट होती है वो सेट कौन करता है? डेवलपर? वो अपने आप डिफॉल्ट होता है। जो डिफ़ॉल्ट होती है। अच्छा। हो गया ना फिर क्लियर? हाँ। ठीक है, एनीबडी एल्स? ओके, सो हाँ, अब जैसे मैंने बता दिया ये सारे स्टेट्स होते हैं। अब जब हम एक्टिविटी का क्लास का हम कोड लिखेंगे, तो इसके अंदर हम अलग अलग फंक्शंस बनाएंगे, जिसका नाम हम ये सेम नाम रखेंगे, ऑन क्रिएट, ऑन रिज्यूम, ऑन रिस्टार्ट, दीज विल बी आवर फंक्शन नेम्स। हमारा एक्टिविटी का क्लास होगा, उसके अंदर अलग अलग फंक्शंस बनाएंगे, एंड दोज फंक्शंस आर कॉल्ड कॉल बैक्स। ऑन क्रिएट, ऑन pause, on stop, on destroy, these functions are called callbacks. ठीक है? ओके, अब ये तो हो गया हमारा फ्रंट एंड, कि हमारा ऐप कैसे चलेगा, सॉरी बैक एंड, ऐप कैसे चलेगा, क्या क्लिक करने पे कौन सी पेज खुलनी चाहिए, या क्या आपका बिहेवियर होना चाहिए ऐप का, दैट इज कॉल्ड द बैक एंड। अब फ्रंट एंड जो आपका यूजर को कैसा दिखेगा आपका ऐप, जो आपका डिजाइनिंग पोर्शन होता है ना ऑफ योर ऐप, दैट इज डन यूजिंग XML। जो आपका बैक एंड होता है दैट इज डन यूजिंग आइदर Kotlin और Java। इन दिस प्रोग्राम वी आर लर्निंग Kotlin, बट जो डिजाइनिंग पार्ट होता है वी यूज XML लैंग्वेज फॉर दैट पार्ट। XML, this language, it mainly uses tags, बैक एंड हाँ, पार्ट और फ्रंट एंड पार्ट। जो डिजाइनिंग पार्ट होता है, फ्रंट एंड, यूजर का इंटरफेस, UI वाला पार्ट।
that is done using XML. और जो backend है, how your app will work, that is done using either Kotlin or Java. Okay, so XML it uses tags. जो basic syntax होता है of XML, हम tags use करके we code, and these tags के examples can be images, text, edit text, button, जो भी मैंने आपको बताया views, ये अलग यही same names होते हैं tags के भी, image view, text view, edit text, button, ठीक है, जो भी आपके views होते हैं same names होते हैं सबके. और एक्टिविटी में जो मैंने आपको स्टेट्स बताए वही सेम नेम्स के आपके फंक्शंस होते हैं जो आप कोड में लिखते हो. अब अगर हम कोई भी XML का अगर कोड लिखना हो तो ऐसे वी स्टार्ट द टैग. जैसे हमको सिंपल ऐसे हेलो वर्ल्ड दिखाना है अपने ऐप की स्क्रीन में, तो ये टेक्स्ट है, सो वी विल यूज द टेक्स्ट व्यू, राइट. तो हमारा टैग का नेम होगा टेक्स्ट व्यू, ऐसे वाले ब्रैकेट्स आएंगे, टेक्स्ट व्यू. फिर हमको जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले करना होगा उसके लिए वी विल राइट एंड्रॉइड सेमीकोलन टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट्स में विल राइट हेलो वर्ल्ड, डबल कोट्स में विल राइट हेलो वर्ल्ड. जो भी हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो वही लिखेंगे इनसाइड द डबल कोट्स. जो भी हमारा विथ होगा ना, रैप कंटेंट का मतलब होता है जो भी. अच्छा, मैंने ये आपको ओके अभी ये मैं नहीं करते, पहले मैं आपको एंड्रॉइड स्टूडियो का समझा देती हूँ, थोड़ा टूर दे देती हूँ, फिर उसमें आपको रियल अभी साथ में कोड करके दिखाऊंगी तो थोड़ा इजीली समझ आएगा. सबने लैपटॉप से किया हुआ है ना, सबके पास है एंड्रॉइड स्टूडियो? यस या नो बता दो. नहीं दी. बाकी ने? अच्छा चलो, आफ्टर द सेशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है, इंस्टॉल भी कर लेना. अच्छा, इंस्टॉल नहीं किया? Yeah, I have it. I think कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है. ओके, जिनके पास नहीं है कैन यू डाउनलोड इट राइट नाउ? मतलब अभी डाउनलोड पे लगा दो, जब तक मेरा समझाना होगा तब तक आपको डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा. एंड्रॉइड स्टूडियो साक्षी, आई एम गिविंग यू द लिंक फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड इट, बिकॉज अभी ये साथ साथ कोड करोगे तो ज़्यादा मज़ा भी आएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. वन सेकंड. I've put the link in the chat box. From here you can download the Android Studio. किसी की इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना, या तो आपके ऊपर है, आपको अभी सेशन को सुनना है, समझ लो, एंड देन आफ्टर सेशन यू कैन ट्राई आउट एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स. ओके, और जिनके पास है अभी समझ लो, एंड देन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट कोडिंग along with me. I'll just present my screen. Okay, so ये आपका एंड्रॉइड स्टूडियो है. जब खोलते हो तो ऐसे दिखता है. When you want to create a new project, you just click here, click on empty activity. Next, here you can give your name. I'll just give demo app. जो पैकेज नेम होता है इसमें आप कुछ चेंजेस मत करना, वो आपका जो भी प्रोजेक्ट होता है उसका ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है. ये बाद में जो आप प्ले स्टोर में व्हेन यू अपलोड योर एप्स तब के लिए काम आता है, तब इतना है नहीं. वन सेकंड फिर से बताओ, एक बार ये कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से. Okay. Create a new project, then click on empty activity, and then next. Then type the name, whatever name you want to give your app here. मैंने डेमो ऐप दे दिया.
यहाँ पे you can choose कौन से location पे you want to save your app and select the language as Kotlin, okay, because we are going to code in Kotlin only. दीदी इसमें मेरा नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा मुझे, मतलब वो क्लिक नहीं हो रहा है। empty activity आप ये select किया empty activity? यस दी एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट किया है। दी वन फिर सेकेंड, next किया? एक्टिविटी आया कहाँ से? और create new project यहाँ से। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। जिसका next नहीं आ रहा था वो आया? नहीं दी, नहीं आ रहा। आपने create new project किया? हाँ, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट किया, फिर एम्प्टी एक्टिविटी किया। हाँ, फिर next ये यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट नहीं आ रहा उसमें तो। क्या दिख रहा है फिर नीचे? नीचे बस प्रीवियस कैंसिल और फिनिश का ही ऑप्शन आ रहा है। हाँ, ऐसे कैसे? Are you sure empty activity is selected? मैं आपको शो करूँ एक बार? हाँ, एक बार स्क्रीन शेयर कर लो। एक सेकंड, आप एक सेकंड रुको। दूसरों जो अदर्स नेक्स्ट करके यहाँ पे नेम लिख देना, ठीक है, एंड सिलेक्ट द लैंग्वेज एज Kotlin एंड मिनिमम एसडीके। ये जो होता है इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा, नीचे लिखा हुआ योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली इतने % ऑफ डिवाइसेस। ये आपका मिनिमम एंड्रॉइड का वर्जन होगा, दिस वर्जन एंड अबव। उस पे आपका जो भी अभी आप ऐप क्रिएट करोगे दैट विल वर्क। सो स्टैंडर्ड हम हमेशा API 18 लेते हैं बिकॉज इससे पुराने डिवाइसेस आजकल होते नहीं है, तो ये आप मिनिमम ले सकते हो। देन जस्ट क्लिक ऑन फिनिश एंड फिनिश करने पर नीचे यहाँ पे, अभी तो आ नहीं रहा है बट नीचे यहाँ पे लिखा आएगा Gradle sync has started। सो जस्ट हाँ, जैसे आ गया ना अभी ये Gradle sync has started, इसको कंप्लीट होने दो, इसको थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक ये कंप्लीट होता है तब तक यू जस्ट वेट। एंड जिसको प्रॉब्लम आई थी प्लीज शेयर योर स्क्रीन, मुझे दिखा दो। बाकियों को समझ आ गया ना? बस फिनिश कर दो एंड वो Gradle sync फिनिश होने पे वेट कर लो। दैट डिपेंड्स ऑन योर नेटवर्क कनेक्टिविटी, कितना टाइम लगेगा। दी आई कैन नॉट शेयर द स्क्रीन बिकॉज मैंने फोन से ज्वाइन किया है, तो मैं आपको वीडियो में शो करूँ? हाँ ठीक है। अदर्स सबका हो रहा है ना? हाँ, तो सौम्य आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ओके दी, ओके। एंड्रॉइड। हाँ, बस वो फिनिश यहाँ पे नीचे लिखा आ जाएगा, जैसे मैंने लिखा आ गया ना ये Gradle sync has finished, वैसा लिखा आ जाएगा। बाकी Okay. सबका आ गया? शुड आई मूव ऑन? यस या नो बता दो। किसी का नहीं हुआ अब तक? ओके ठीक है, वो होता रहेगा। तब तक मैं आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट दीज डिफरेंट फाइल्स एंड हाउ बेसिकली दिस सॉफ्टवेयर लुक्स लाइक। तब तक आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो एरिया होता है, ये जो लिखा हुआ है सर्च एवरीवेयर सब, दिस इज कॉल्ड द एडिटर एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड योर प्रोजेक्ट व्यू। आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्यू होते हैं, प्रोजेक्ट व्यू या रिसोर्स मैनेजर व्यू, स्ट्रक्चर, फेवरेट, ये अलग अलग टाइप्स के व्यूज होते हैं। प्रोजेक्ट व्यू हम हमेशा यूज करते हैं जितने भी फाइल्स देखने के लिए। फर्स्ट फाइल यू कैन सी दिस इज द मैनिफेस्ट फाइल, second is the Java file, and third is the rest folder. These are folders, sorry, not files, folders. First and foremost आपका manifest folder आता है, इसमें you have the Android manifest file. अब इस फाइल में जितने भी whenever you upload your app on the Play Store or you share your app,
तो जो भी जहाँ पे भी आप अपलोड करे उसमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होते, कुछ परमिशंस, आई एम सॉरी, परमिशंस, जितने भी इन्फो, वी डोंट हैव टू अंडरस्टैंड क्या इन्फो होती है, वो सब ऑलरेडी इसी फाइल में सब कुछ स्टोर होता है, और ये अपने आप आ जाता है। आप जैसे अपना कोड लिखोगे ना ऐप का, अपने आप इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती जाएगी जो भी चाहिए होता है प्ले स्टोर को। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड क्या होते हैं, बस ये होता है कि एंड्रॉइड माइनफेस्ट में ये सब इंफॉर्मेशन लिखी होती है। हमको बस दो चीजों से यहाँ पे मतलब है, फर्स्ट इज दिस लेबल एंड सेकेंड इज दिस आइकन। लेबल में आपने जो भी नाम दिया होगा ना ऐप को, वो ही यहाँ पे लिखा आ गया होगा। जैसे मैंने डेमो ऐप दिया था तो वो लिखा आ गया, अपने आप यहाँ पे लिखा आ गया होगा डेमो ऐप। यहाँ पे आइकन में होता है जो भी आपका ऐप का आइकन होगा, जो भी लोगो होगा, वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी तो हमने सेट नहीं किया इसलिए यहाँ पे डिफॉल्ट यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये डिफॉल्ट आपके ऐसे आइकन्स दिख रहे होंगे। ठीक है, Adi, can you please explain again the left side? This manifest in Java files. जावा आई हैवंट एक्सप्लेन। मैनिफेस्ट इज जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं व्हेन यू अपलोड योर ऐप टू द प्ले स्टोर नीड्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर ऐप, लाइक हाउ व्हाट डिफरेंट परमिशंस डज योर ऐप यूज। जैसे अभी व्हाट्सएप का जो प्राइवेसी का पॉलिसी होती है, जो भी प्राइवेसी पॉलिसी होती है, हमको अभी ऐसा हो रहा है ना कि कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब देख लेते हैं लोग, तो दोज परमिशंस जो भी आपकी ऐप को चाहिए, जैसे इंटरनेट परमिशंस और परमिशन टू यूज द कैमरा और द गैलरी, ये सब परमिशंस दे आर रिटन इनसाइड दिस फाइल। ये अपने आप आ जाएंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप इसमें कोड लिखा आ जाता है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर ऐप और व्हाट विल बी द लोगो ऑफ योर ऐप, ये सब यहाँ पे लिखा आ जाता है, अपने आप लिखा होता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, जस्ट अंडरस्टैंड जितना भी इंफॉर्मेशन द प्ले स्टोर नीड्स, और व्हेन यू शेयर योर ऐप टू योर विद योर फ्रेंड्स और फैमिली, तो उनके फोन्स को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट योर ऐप वो भी इसी में लिखा होगा। ठीक है, ये फर्स्ट था। सेकेंड इज योर जावा फोल्डर। इसमें देर आर 3 फोल्डर्स, ये दो में हमको जो हाईलाइटेड हो रखे हैं, वी डोंट नीड दीज। ये जो टेस्टिंग करते हैं ना एप्स की, देर आर पीपल हु टेस्ट योर ऐप, वो ये फोल्डर्स उनके लिए होता है। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, वी जस्ट नीड टू नो अबाउट दिस फोल्डर। इसमें आपके सारे कोड्स होते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया था मेन एक्टिविटी, दिस इज योर मेन एक्टिविटी फाइल। यहाँ पे आपकी सारी मेन एक्टिविटी की कोडिंग आएगी इन कॉटलिन, द बैक एंड पार्ट। ओके, और जितने भी एक्टिविटीज होती है सब हम इसी फोल्डर में डालते हैं, जो आपका फर्स्ट फोल्डर होता है ऑफ द जावा फोल्डर विच इज नॉट हाईलाइटेड। मेरा पैकेज का नेम है, आपके लैपटॉप्स में अलग नाम होगा। ठीक है, ये फर्स्ट फोल्डर में आती है। दिस इज योर सेकेंड फोल्डर इन द प्रोजेक्ट व्यू। थर्ड फोल्डर इज द रेस्ट फोल्डर। अब जितने भी आपके इमेजेस यूज होंगे या हम जो लेआउट्स का जो एक्सएमएल कोडिंग लिखते हैं ना, वो इस फोल्डर में आता है, इन दिस रेस्ट फोल्डर। लेआउट आपको दिख रहा है, ये हमारा एक्सएमएल है, लेआउट का फाइल वो दैट विल कम इनसाइड द लेआउट। ड्रॉएबल में जो भी आपका ऐप का आइकन का जो पिक्चर होगी ना, जो आपका लोगो होगा, दैट लोगो विल कम इनसाइड द ड्रॉएबल फोल्डर। Also, if you're using any images in your apps, those images will also come in the drawable folder. In MipMap, the icon which displays in your phone's menu section, that icon comes under the MipMap folder. And in values, जो भी आपके apps के colors होंगे, या अभी आपने देखा था यहाँ पे ये डेमो ऐप अभी लिखा था, but when I clicked on it, it changed into something like this, ऐसे add string जैसे लिखा आ गया था, वो इस फोल्डर में आता है। अभी मैं बस ऊपर से बता रही हूँ, समझ नहीं आया तो इट्स ओके, बाद में जब पढ़ोगे, जब इसको रिवाइज करोगे, when you will start with the course, with the Android study jam course, ऑनलाइन जो कोर्स है, उसमें सब डिटेल में आपको एक एक करके समझाया होगा। ओके, आपके कलर्स, जो भी कलर्स या स्ट्रिंग वैल्यूज होती है, वो आपकी इस फोल्डर में आता है। ये फिर से बताऊं, ये आपको समझ आ गया?
Oh, it's okay. It's done. Others? Okay. So अब ये तो आपका basic introduction था about the Android Studio. अब since the time is 6:06 now, do you want me to show you how a layout is coded, or do you want me to do this in the next session? Right now we also have another session. I need to attend that one also. Yes, me too. Okay. So okay then. In next session में करते हैं. बस last चीज I'll just show you. ये जो साइट थी g.co, मैं लिख देती हूँ. यहाँ पे आपने रजिस्टर किया था ना फॉर द एंड्रॉइड स्टूडियो बोल रही हूँ, स्टडी जैम्स प्रोग्राम. यहाँ पे when you go to this website, register here, ये आपको दिखेगा. And since the track is new to programming for you, just start the course. And यहाँ पे ना, अरे यार, yeah. So for your track, you need to complete these 2 units, these 4 badges and these 2 badges. ठीक है. तो अभी अगर किसी को अभी स्टार्ट कर देना है या नेक्स्ट सेशन में, तो ऐसे मैं आपको कोड करके दिखा दूंगी, बट इट्स बेटर इफ यू कंप्लीट दीज बैचेस बिफोर द नेक्स्ट सेशन. आई विल गिव यू अ वीक्स टाइम. वी विल हैव द नेक्स्ट सेशन आफ्टर अ वीक, सो यू विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू फिनिश दीज बैचेस. इसमें जो मैंने आपको पढ़ाया है ना वही है, बस इसमें आप साथ में कोड करोगे. जैसे आपने फर्स्ट बैच पे क्लिक किया, दीज वीडियोज आर ऑप्शनल. These videos are optional. If you want to complete, you can. Otherwise, just start from here. Click on Take Code Lab. And जो starting से जो भी है आप उसको पढ़ते जाओ and this complete these labs. Okay. सारा आपको बताएंगे कैसे क्या करना है, क्या कोड्स है. ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं आपको पहले सब कुछ करा चुकी हूँ. तो दिस विल बी अ गुड रिविजन. एंड हम साथ में यू विल ऑल्सो बी क्रिएटिंग द डाइस रोलर ऐप ऑल्सो. ये जो आपका ऐप है ना, ये 4th वाला, इसमें आप वो ऐप क्रिएट भी करोगे साथ साथ में. सो या नेक्स्ट सेशन तक ट्राई टू कंप्लीट दिस 6 बैचेस. अदरवाइज अगर किसी के पास टाइम कम है, देन जस्ट कंप्लीट टिल दिस 3rd बैच. ठीक है. ये 1 2 3 कंप्लीट दिस 3 बैचेस. कंप्लीट मतलब आपको ये लैब्स कंप्लीट करनी होगी. देन यू हैव टू गिव दिस क्विज. फिर जैसे आप इस क्विज को पास कर जाओगे तो वो आपको बैज मिल जाएगा. ठीक है. यस दी. ओके. और भी कुछ डाउट्स हो, जस्ट लेट मी नो ऑन द ग्रुप. आई जस्ट रैप अप नाउ. ये सब चीजें विल डू इन द नेक्स्ट सेशन. Can we leave now? Yeah, you can leave. So that was it for today, guys. I hope you had a nice time. And if you want to share what you learned in the session, you can do so by using these following hashtags and tag the following people on your social media. Thank you for joining in. दी व्हाट्सएप ग्रुप का एक बार लिंक शेयर कर दो. Okay. Baki, you can leave. Thank you, Dee. Thank you.